Shan ji, आपकी तरफ से best wishes to Vinodini. No, of course, Rukmini is absolutely fantastic and. कोई मास्क में चले हाँ, अच्छा रुक जाओ, ठीक से बोल दूँ. Chandan, he's an actor. Yeah, he's a Ramakrishna. So it's in the life of a very, very strong character. Everyone who knows Bengal culture will know about Vinodini and forward-thinking woman she was, and at times, of course, to bring her back into reality life into this new generation. And of course, Rukmini is one of the most solid actresses. Ramda playing Ramakrishna Paramhans. It's a fantastic thing. And of course, congratulations on the wonderful film. Sorry, मैं ऐसे ही No. typically गुजर रहा था तो अभी विनोदिनी शान से रिलीज होगी नेशनली शान से. ऐसे कैमियो अपीयरेंसेस चाहिए हम लोग को. Please do watch the. सबसे पहले हम तीनों की तरफ से आप सबों को नमस्ते, प्रणाम. और आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, यस, ये जर्नी जो था वो बहुत ही कठिन था, लेकिन जैसे कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, कि 5 साल इतना जद्दोजहद करने के बाद ये फिल्म बंगाल से जो एक पैन इंडिया फिल्म हम आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में विनोदिनी दासी ऐसी एक कहानी है जो कहानी हमें लगता था, हमारे जो पूरा यूनिट के लोग हैं उन सबको लगता था कि ये कहानी शायद कहीं जाके राष्ट्रीय स्तर पे आनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पे ये कहानी को कहनी चाहिए. तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी शुभजीत, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो ये दिन नहीं देख पाते. तो शायद इसके लिए वो मेहनत करना पड़ा, हम सबको करना पड़ा. Huge round of applause for him, please, ladies and gentlemen. Quickly moving on to the diva, the lady who has kind of created magic, मतलब अलग level का magic. You know, I want to ask you this very honestly. In every actress's life, there is that one character that remains close to your heart always because it really gets the best out of you, right? There are some characters which are challenging and there are some characters that take you to a different timeline altogether. This for you is one of those characters which is going to stay in your heart forever, right? What are your emotions like right now? Because already आपको बंगाल से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, national audience के प्यार का इंतजार है, क्या है, excitement है, nervousness है, happiness है, how are you balancing all the emotions? Firstly, thank you so much, ladies and gentlemen and members of the press, for gracing this occasion. I have to say this that, like you said, कि हर एक अभिनेता अभिनेत्री के जीवन में एक ऐसा किरदार आता है जो आपके अंदर रह जाती है, you know, आपके दिल के अंदर. It's very close to your heart. But for me, if I can only speak for me, myself as Rukmini, I believe that Vinodini is one such character which has taken a part of my soul along with her. It's taken a part of me away, which will never be mine anymore. वो मुझे वापस कभी नहीं मिलेगी, ये उनके पास है. And I think ये एक ऐसा किरदार है, इसका जो इनकी जो लड़ाई है, the fight, हम लोग को लगता है कि हम लोग जब from the point हम लोग जन्म लेते हैं to the day that we die, हम लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोग अपना हक के लिए लड़ते हैं. लेकिन इनकी कहानी ऐसी है कि it has gone beyond her time. 141 years, almost for 141 years, Vinodini has been fighting for her right, for her justice. And finally, I have to say this, मैं धन्यवाद करना I really want to thank the CM of our state, Srimati Mamata Banerjee, because उन्होंने finally, upon our request, has changed the name of Star Theatre to Vinodini Theatre after 141 years. It is one of the longest delayed justices that has ever happened, but it has happened and history has been recreated. क्या बात है, जोर से ताली just for this particular movie, please, because a lot of you might not know the reference. उनका ये ख्वाब था कि उनके नाम से वो थिएटर बने, उस टाइम पे वो नहीं हो पाया था, but then God has been kind, भगवान के घर में दे रहे हैं, and then there is something that has come real and वो actually हुआ है. Moving to Chandana, before I quickly open the questions for the press, मैंने कल सुना है कि before I give you the contest, ये जो लास्ट में हम लोगों ने गाना प्ले किया, आप लोगों ने देखा एक spiritual leader आए थे, right? A lot of you could not have figured out that's actually this man over here. And you know the funny story behind this? पहली बार जब वो रामकमल जी से मिले थे, in a cafe at Warsaw, which I may say, ये अपने Gucci Prada वाले swag में आए थे. तो it's only रामकमल मुखर्जी who imagined कि ये swag वाला बंदे को मैं ऐसे spiritual character से देख सकता हूँ. Please tell us that story before I open up the questions for the media.
तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया आने का, और हर बार आप जो आते हैं और हमारे जैसे कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होता है कि फिल्म मेकिंग जो है इट्स लाइक ए डायरेक्टर्स मीडियम ना, एक निर्देशक की जो सोच होती है वो सिनेमा में दिखती है, जो आपने अभी देखा। तो कई बार मतलब एक डायरेक्टर के लिए काम बहुत आसान हो जाता है जब वो किसी एक्टर को एक तरीके के रोल में या किरदार में देखते हैं, तो बहुत आसान होता है उसको उसी रोल में इमेजिन करना या चुनना या उनको वो रोल ही दे देना। लेकिन पता नहीं ये क्यों बैठे हुए हैं, मुझे ज़्यादातर रोल जो मिलते हैं कि पापी, गुंडा, कमीने, खून, कमीने, गाली गलौज, सनक, आश्रम। मैं इनको ये मुझे एक दिन फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोला हम घर पर बैठे हैं। तो बोला हम आप मिलिए 5 बजे। तो मैं तो रामदा को बहुत सालों से जानता हूँ, तो हम मिले उनसे, हम गए अपना ऐसे ही चड्डी बनियान टी शर्ट चश्मा लगा के हीरो बन के जा रहे कि वो ये डायरेक्टर आया मिल लेते थोड़ा, और तभी हमको बोल रहे हैं कि आपको ये बनना है रामकृष्ण परमहंस। तो मैं तो पहले तो मैं सकपका सा रह गया कि भाई ऐसा सोचा कैसे आपने, मतलब आप मतलब सच में आप ऐसा सोच रहे हैं? बोला नहीं बिल्कुल, ये अगर ये रोल कोई कर सकता है तो तुम ही कर सकते हो। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये कोई आसान रोल है नहीं, ये ऊपर वाले की नेमत होती है जब आपको इस तरह का किरदार मिलता है, और वही आपको चुनता है जब आप उनको लगता है ऊपर वाले को कि आप इस रोल के लिए सक्षम हैं, तब जाके इस तरह का किरदार आपको मिलता है। तो आई वुड लाइक टू थैंक राम एंड माई प्रोड्यूसर देव to believe in me and offer me such a role to, I mean, yeah, that's how it is. Yeah, but it's beautiful in the true sense of the term, and you all have good intent. You all have worked very hard. Audience का प्यार है. Most importantly, विनोदिनी देवी का आशीर्वाद है, which is there with the film. So on that note, I will open up the floor for questions from the media. Just a quick request before you ask. Please raise your hand. आप अपना नाम बताइए, अपने प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, and also mention कि आपका सवाल किन के लिए है, so that it's easier for them to understand. I believe he has a question. राकेश भाई. हाँ, रुक्मणी, सबसे पहले 5 साल की स्ट्रगल के बारे में हमें कुछ बताइए, और ये किरदार के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि 5 साल का इतना टाइम लगा और इतना अप्रिसिएशन भी मिलना है। टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर दिस कैरेक्टर। एक्चुअली ये किरदार करने के लिए या निभाने के लिए मेरा 5 साल का प्रिपरेशन नहीं था। 5 साल हमें इस वजह से लग गया कि सिर्फ बंगाल में नहीं, आई थिंक द एंटायर कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री वी हैव फिल्म्स, वी हैव विमेन सेंट्रिक फिल्म्स। लेकिन आप किसी भी मेल सुपरस्टार ले लो और एक फीमेल सुपरस्टार ले लो, उनके बजट में, हीरो के बजट में हीरोइन का फिल्म नहीं होता है, नहीं बनती है। एंड बंगाल हैज़ ऑलवेज बीन द पायनियर्स, दे हैव बीन द फ्रंट लाइनर्स आर्ट्स एंड कल्चर में। सो ये पहली बार फिर से जब हम लोगों का एक ही रिक्वेस्ट था कि हमें विनोदिनी बनाना है, लेकिन एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का मूवी बनाना है। इसको टू सपोर्ट दैट ड्रीम, टू बैक दैट ड्रीम, हम लोग बहुत, देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स वी वर बीटन डाउन एंड देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स केम एंड हेल्ड आवर हैंड्स। लेकिन ये सपने में विश्वास करने के लिए बहुत वक्त लग गया कि एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का पिक्चर, इस वजह से हमें 5 साल लग गए। लेकिन फाइनली वी गॉट देव फ्रॉम देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स एंड प्रतीक फ्रॉम प्रमोद फिल्म्स टू बैक आवर ड्रीम्स। एंड यही था, फिर सिर्फ पिक्चर बनाना नहीं, पिक्चर जो बन रही थी उसके बाद वो ऑडियंस तक पहुंचेगी कि नहीं, सो इट्स अ लॉन्ग फाइट। तो जब हम लोग ये पिक्चर भी शूट कर रहे थे, हमें हमेशा यही लगता था कि आई डोंट नो व्हाट जस्ट सो या switch on the light. ओके सो या इट्स ओके या एनलाइटमेंट हो गया या एग्जैक्टली। सो जब हम लोग ये पिक्चर बना भी रहे थे ना, आई स्टिल रिमेंबर सेट पे जाके मैंने राम को बोला कि पता है राम, ओनली द स्टोरी इज़ फ्रॉम 1870 1880, बिकॉज ये 19th सेंचुरी बंगाल की कहानी है। एंड आई थिंक सिर्फ वो ना कैलेंडर में वो साल ही बदला है, नारी का जो स्थान है, जो जगह अभी भी है, वो बदलने में अभी भी काफ़ी वक्त लगेगा हमको। आई थिंक हम लोग वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, बट फॉर वीमेन टू गेट टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट देयर स्टिल सम वे टू गो, और मे बी अ लॉन्ग वे टू गो। सो यही था। एंड अदर दैन दैट, इसी वजह से 5 साल लग गए हमें बनाने के लिए। एंड अदर दैन दैट ऑफ कोर्स
मैं कभी भी क्लासिकली ट्रेंड नहीं थी कथक में, सो उसके लिए मुझे 4 साल मैंने ट्रेन किया। वो 5 साल में जब भी मुझे वक्त लगा, जब भी एक प्रोड्यूसर आया बोला कि ये पिक्चर करेंगे, तो मैंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया, शायद खुशी के मारे। फिर प्रोड्यूसर भाग जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर प्रोड्यूसर आता, फिर मैं नाचने लगती थी, तो यही चलता था मेरा। फिर मुझे मेरी टीचर ने बताया कि पता है सीख के रखो, बिकॉज कोई भी सीखी हुई चीज़ ना कभी आई थिंक वेस्ट नहीं होता है, एग्जैक्टली ज़ाया नहीं होता। सो यही हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स वी डिड एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स, बिकॉज विनोदिनी की लाइफ दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, किसी भी अभिनेत्री की, सिर्फ उनकी नहीं, उन्होंने जो किरदार निभाया है पर्दे पे, अभी तो ये इन्होंने मंच पे थिएटर में, उन सब का प्रिपरेशन, सो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट आई थिंक फाइनली ऑडियंस रिएक्शन देख के इट्स वर्थ इट। राम सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप एक हिंदी फिल्म मेकर है, आपने बंगाली फिल्म बनाने का क्यों सोचा? और दूसरा सवाल ये है कि जब बंगाली फिल्म बन रही है तो पैन इंडिया आप लेके जा रहे हो फिल्म को, उसके पीछे का क्या थॉट? यो बंगाली है बननी चाहिए। जी, क्योंकि देखिए मैंने वही कहा कि हिंदी फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ 2018 से, केक वॉक से लेके एक दुआ तक। आइंदा भी भविष्य में भी बनाऊंगा, और कुछ है प्लान्स जो हिंदी फिल्म्स के लिए है। लेकिन ये इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट था कि इसको मैं अगर बांग्ला में नहीं बनाता तो मैं इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें होती हैं जो भाषा के ऊपर निर्धारित होती है और भाषा के ऊपर निर्भर होती है। जैसे कि कुछ मराठी फिल्में हैं जिसको बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है या रीमेक्स किया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो होता है, जो मराठी फिल्म का जो फ्लेवर है, वो मराठी में ही आएगा। वो आप हिंदी में कितना भी कोशिश कर लो, वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। काक स्पर्श ले लीजिए या पिंजरा ले लीजिए, जो भी श्री राम लागू जी की फिल्म है, या नाना पाटेकर की जो फिल्म है, या महेश मंजरेकर की जो फिल्में हैं, ये सारे हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल लैंग्वेज में बना है। हालांकि लैंग्वेज हम चूज़ नहीं करते, हम जब सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तब लैंग्वेज अपने आप तय हो जाता है कि इसी लैंग्वेज में हमें बनाने से ये फिल्म को हम जस्टिस कर सकते हैं। विनोदिनी दासी क्योंकि वो एक बंगाल की थिएटर एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने इतना सारा काम जो बंगाल में किया है, और जो आपने ट्रेलर टीजर में भी देखा है कि उनका जो परफॉर्मेंस स्टेज में है, वो सारी चीज़ अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं यूज़ करते तो हम शायद इसका जो फुल फ्लेवर है वो नहीं ला पाते। तो ये एक मेन इशू था इसको बांग्ला में बनाने के लिए। और हाँ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मैंने अपने जो स्टेट है उसके लिए मैंने ये ट्रिब्यूट दिया है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। हालांकि 30 साल मैं मुंबई में ही हूँ, मैं ज़्यादा भी मुंबई कर हो गया हूँ, लेकिन कहीं दिल पे तो एक बंगाली आत्मा है जिसके लिए मैंने इसको ट्रिब्यूट दिया है, मैंने अपने जन्मभूमि को। जब पैन इंडिया लेके जाने का कैसे सोचा, उसके बारे में? वही मैंने कहा कि देखिए हम सारी भाषाओं में फ़िल्म देखते हैं, तो कहीं जाके मुझे और रुक्मिनी को भी लगा कि जब हम लोग फ़ोन पे बात करते थे या फिल्म बनाने की हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे, तब हमने सोचा था कि इसको बनाएंगे, मन में ऐसा सोच लेके बनाएंगे कि ताकि ये बंगाल के बाहर भी जा सके और जो नेशनल ऑडियंस है उनको भी पसंद आए। इसीलिए वो बजट, इसीलिए वो ग्रैंडर आप जो देख रहे हो, या जो डांस आपने देखा या जो ट्रेलर देखा, वो आप देखोगे कि इट इज़ एज इक्वल टू एनी हिंदी सिनेमा और एनी ऑफ दीज पीरियड ड्रामा जो हम देखते हैं पर्दों पे। रीजनल सिनेमा का बहुत सारी कठिनाई में आए हैं, या बॉम्बे में आए हैं, या हम दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए हैं, हम और बाकी शहरों में भी जाने की जो प्लानिंग हमने रखा है वो इसीलिए है कि बंगाल से भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो आप लोग तक पहुंचती नहीं हैं। एक कोशिश है कि हम बंगाल की फिल्म भी आप लोग तक पहुंचाएं, और बाकी तो आप लोग दर्शक हैं, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग को पसंद आए तो आप आगे उसको बोलेंगे तो हम और बना सकेंगे, उसको और आगे ला सकेंगे। कि भारतवर्ष में सिर्फ पुष्पा और बाहुबली नहीं, कहीं जाके एक विनोदिनी दासी भी बन रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, जैसे रुक्मिनी कहती है कि ये संजय लीला भंसाली नहीं, क्या कहते हो आप? ऐसे मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ नॉट बांग्लार भंसाली, दिस इज़ बांग्लार विनोदिनी बाय राम कमल मुखर्जी। सो क्या है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू संजय सर, वो मुझे जानते भी हैं और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं,
और ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि अगर आपने कहा कि संजय लीला बंसाली की जैसा दिखता भी है तो ये इटसेल्फ इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. बट डेफिनेटली देखिए उन्होंने ही हमें ये संजय लीला बंसाली, आशुतोष गोवारिकर कह लीजिए या मणि रत्नम सर कह लीजिए, ये हमारे 3 मार्गदर्शक हैं इस तरीके की फिल्म भारतवर्ष में दिखाने के लिए कि आप कैसे पीरियड ड्रामा को इतना खूबसूरती से दिखा सकते हैं. ये तीनों ने ही हमें लगान से लेके अभी तक जो पौने सिल्वन टू, आई एम सेइंग फ्रॉम ऑफ कोर्स संजय सर के देवदास से लेके हीरा मंडी तक, खामोशी से लेके हीरा मंडी तक, सॉरी. तो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है. बट हाँ, हमारा जो बजट है वो शायद हमारी जो ऐश्वर्या राय जो जोधाकबर में है या दीपिका पादुकोण पद्मावत में है, उनके जो लहंगा का बजट है उतने बजट में हमने ये फिल्म बनाया. या बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू, बिकॉज आपने जो गाना देखा, इनका परफॉर्मेंस देखा, ये 1 टेक में था विथ 4 कैमराज. इसके लिए इनको 4 साल रियाज करना पड़ा और रिहर्सल करके पूरा कोरियोग्राफ करके हमने किया था ताकि हम 1 टेक में कर सके. गाना 4 साल से नहीं किया मैंने, लेकिन उसमें जब और बहुत अच्छी चीज था ये जब आशुतोष सर ने ये फिल्म देखा, आशुतोष गोवारिकर सर ने, और इन्होंने हमें और इनको अपना ऑफिस में बुलाया क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे कर आपने किया. उन्होंने हमें पूछा कि कितना दिन में शूटिंग किया, हाउ मेनी डेज यू टुक. हम लोगों ने 3 घंटे में कान्हा शूट किया है. एंड आप लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं मुझे पता नहीं, इट्स अ 6 मिनट लॉन्ग सॉन्ग जो अभी होता ही नहीं है. मतलब लास्ट एक्चुअली हम लोग बहुत साल पहले ऐसे लंबे गाने देखे बंसाली सर के फिल्म, या देवदास, माधुरी जी, ऑफ कोर्स माधुरी मैम, एंड वी डिड इट कंटिन्यूसली. हम लोग 1 टेक करते थे, पूरा गाना ख़त्म करते थे फिर से. सो हम लोग ने 4-5 बार किया. और अभी मैंने चंदन को भी यही बताया कि इवन होरी मोन मोजाए द सॉन्ग, वो भी हम लोग के 1 टेक है, बट वी हैव ओनली शॉट इट ट्वाइस. एक शॉट है विदाउट गुलाल जो हम लोगों ने किया था, बिकॉज अगर गुलाल स्टेज पे आ जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा, उसको क्लीन करने में वो करने, वी विल लूज आउट ऑन टाइम एंड टाइम इज़ मनी फॉर अस. सो ऑब्वियसली उस वजह से हम लोग ने एक शॉट किया विद गुलाल एंड एक शॉट किया विदाउट द गुलाल, एंड वी जस्ट शॉट दैट ट्वाइस एंड दैट्स इट. एंड कान्हा भी हम लोग 3 घंटे में 1 शॉट. सो बोथ द सॉन्ग्स आर 1 टेक सॉन्ग्स. तो कल जब ये फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ, सोहेल आपने जो सवाल पूछा, तो महेश भट्ट साहब आए थे और सुदीप सरकार से आए थे और मधुर भंडारकर जी भी आए थे. उनका सबका यही सवाल था. मधुर भंडारकर जी तो खड़े होकर क्लैप भी कर रहे थे और सुजीत सरकार जी और दे वर ऑल लाइक, ये हाउ डिड यू डू दिस. सो यही है कि बंगाल में हम कोशिश कर रहे हैं और वो प्रयत्न जो है, जो कोशिश है, वो हम राष्ट्रीय स्तर पे लाना चाहते हैं. तो इसीलिए हमने विनोदिनी को सोचा कि क्या ये जाके अगर ये फर्स्ट बंगाल का पैन इंडिया फिल्म होगा तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खामी है. थैंक यू. कि आपने अभी बहुत अच्छा कि जो पिक्चर की ओरिजिनलिटी है जी, उसी लैंग्वेज बनी तो बहुत अच्छी लगती है, बाकी उसको डब करो. आपने जो बंगाली जो स्टोरी है वो बंगाली में की है, उसके पीछे आप कैनवास भी बहुत अलग कैनवास था, इट वॉज अ पीरियोडिक कैनवास. तो उसको कैसे ध्यान में नजर से आपने वो किया है जो गोज विद वेल विद योर मूवी. देखिए बंगाल का जो भाषा है, आप जो भाषा के ऊपर जो कह रहे हो, हिंदी में भी हम जब हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी में बहुत तरीके की हिंदी है. हिंदी इज़ नॉट जस्ट हिंदी, भोजपुरी हिंदी, मुंबईया हिंदी, महाराष्ट्र मिक्स हिंदी, साउथ इंडियन मिक्स हिंदी, पंजाबी मिक्स हिंदी, बंगालियों का सबसे खराब हिंदी. तो एक्सक्यूज मी, तो वो सब हिंदी मिला के हिंदी है जो हम बहुत स्टीरियोटिपिकल हिंदी फिल्मों में देखते हैं. बंगालियों का सबसे मीठा हिंदी, हाँ, रसगुल्ला मीठी, रसगुल्ला भी हिंदी. तो वो सारे हिंदी जो है वो हिंदी नहीं है. वैसे ही बांग्ला में भी बहुत सारे बंगाली डायलेक्ट्स हैं जो इस फिल्म में आप देखोगे कि विनोदिनी दासी ने जो जैसे थिएटर्स किए हैं उन्होंने, तो बंगाल का एक बहुत बड़ा राज्य था तब. 1862 की कहानी है, 1862 से लेकर 1941, तो स्वतंत्रता के पहले की कहानी है. तो बंगाल तब ग्रेट बंगाल था, उसको ग्रेट बंगाल बोला जाता है. आप मैप में भी देखोगे तो दिखाई देगा. उसमें ओडिशा, बिहार एंड एंटायर बंगाल विच इंक्लूड्स बांग्लादेश. So the whole topography had all languages.
आप लोग को शायद ये भी नहीं पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको हम लोग नेशनल पोइट के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना जो जर्नी है वो हिंदी कविताओं से शुरू किया था। उन्होंने वो मैथिली लैंग्वेज में है, मैथिली इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदी, और फिल्म में इनका जिक्र भी है इसीलिए कि बंगाल से ही रविंद्रनाथ टैगोर का जो जर्नी है वो हिंदी से शुरू हुआ था। भानु सिंह नाम से उन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से उन्होंने नहीं लिखा था। और तो इस तरीके से हम बंगाल में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस देखते हैं, यहाँ तक कि राजस्थान से बहुत सारे लोग आके बंगाल में सेटल किए थे। तो इसलिए द हल मारवाड़ी, द ह्यूज मारवाड़ी कम्युनिटी दैट वी फाइंड इन बंगाल इज़ ऑल्सो बिकॉज फ्रॉम जयपुर। सो वहाँ से जयपुर का जो लिहाजा है वो आया हुआ है। तो ये सारी जो जयपुर है या बांग्लादेश का लैंग्वेज है या मैथिली लैंग्वेज है जो हमारा बिहार से आया हुआ है, तो ये सारे मिला के लैंग्वेजेस हैं। तो इसीलिए ये लैंग्वेज के ऊपर इतना लैंग्वेज हैवी और लैंग्वेज डिपेंडेंट कहानी है ये, और इसीलिए मैं और कोई लैंग्वेज नहीं बल्कि, और मैंने सारे लैंग्वेजेस को एग्जैक्ट रखने की कोशिश किया है। इसलिए बंगाली फिल्म में आपने देखा है कि हिंदुस्तानी गाना जो है कान्हा है, वो हिंदुस्तानी गाना इसीलिए है कि विनोदिनी इज़ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ मारवाड़ी साहब। तो वो बांग्ला में गाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो जितना ओरिजिनल, जितना ट्रू टू द स्टोरी हम हो सकते हैं, ऑथेंटिसिटी, वो हमने रखने की कोशिश की है। चंदन भाई, मेरा सवाल आपसे है कि जब कोई भी किरदार के लिए आपको अप्रोच किया जाता है, क्या रिएक्शन होता है और क्या थॉट प्रोसेस होता है किरदार चुनने के पीछे? जैसे हमें ऑलरेडी पता है आपने बहुत अच्छे किरदार निभाए नेगेटिव, और ये एक अलग तरह का किरदार। अरे लास्ट पिक्चर में मेरे ऊपर उन्होंने ये क्या बंदूक टाना था। लास्ट फिल्म में इनकी कन्फर्टी पे बंदूक रख दिया हाँ, था। सनक में तो यही कर रहे थे मेरे साथ। सनक में ये रोल, अभी जाके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। लाइफ जो आपने सवाल पूछा कि एक्टर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है ना। मतलब सबसे ज़्यादा आपको सरेंडर करना पड़ता है कि आपको ओपन रहना पड़ेगा किस तरह का रोल आता है। जनरली ऐसा होता है कि क्योंकि आप एक ढर्रे का काम करते हैं और एक ढर्रे का रोल करते हैं, तो लोग आपको उसी हिसाब से जानते हैं। जनरली मेरे जो किरदार बहुत मशहूर हुए हैं, लोग